નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, અમારી વિશેષ રજૂઆત સાથે હું છું નુપુર। દર વખતની જેમ આજે પણ કેટલીક ગંભીર શારીરિક બીમારી વિશે જાણકારી મેળવીશું। આજની વ્યસ્ત જીવનશૈલીમાં કિડનીને લગતી ઘણી બીમારીઓ ઘરે ઘરે જોવા મળે છે। ત્યારે પથરી હોય કે પછી કિડનીની ફેલ્યોર હોય, પ્રોસ્ટેટની બીમારી હોય કે પછી યુરોલોજિકલ પ્રોબ્લેમ્સ, આ બધી જ બીમારીઓ શા માટે પેદા થાય છે અને તેના ઉપાય કેવી રીતે કરવા જોઈએ? આ સિવાય નિષ્ણાત ડોક્ટર આપના સવાલોના જવાબ પણ આપશે। શરૂઆત કરીએ આજની વિશેષ રજૂઆતની। આપણું શરીર એક કુદરતની અજાયબી સમાન છે। શરીરના વિવિધ અંગોની જાળવણી રાખવી એ જ સંપૂર્ણ સ્વાસ્થ્યનું રહસ્ય છે। ત્યારે શરીરમાં કિડની જેવા મહત્વના અંગમાં સર્જાતી કોઈ પણ પ્રકારની તકલીફ ઘણા લોકોને ચિંતિત કરે છે। ત્યારે આજની ફાસ્ટ લાઈફમાં કિડનીની બીમારીઓ તથા યુરોલોજીમાં સૂઝબીલ તેના ઉપાયો વિશે એક ખાસ રિપોર્ટ જોઈએ। માનવ શરીરમાં સર્જાતી કોઈ પણ તકલીફ જો શરૂઆતમાં જ જાણી શકાય તો તેનો સરળતાથી ઉપાય કરી શકાય છે। આવું જ એક મહત્વનું અંગ છે કિડની। શરીરમાં રહેલા ખરાબ તત્વોને બહાર કાઢી બોડીને ક્લીન કરવાની જવાબદારી કુદરતે કિડનીને આપી છે। લગભગ 75% પુરુષો અને 50% સ્ત્રીઓ તેમના જીવનમાં કોઈના કોઈ તબક્કે પેશાબ સંબંધિત સમસ્યાથી પીડાતા હોય છે। ત્યારે સૌથી પહેલા શરીરની યુરિનરી સિસ્ટમ વિશે જાણીએ। મૂત્રાશય કે કિડનીને લગતા રોગોમાં પથરી અને પ્રોસ્ટેટના રોગ સામાન્ય છે। લગભગ 5 થી 10% લોકો પથરીની બીમારીનો શિકાર બનતા હોય છે। પુરુષોમાં પથરીનું પ્રમાણ સ્ત્રીઓ કરતા વધારે જોવા મળે છે। 20 થી 40 વર્ષ દરમિયાન આ બીમારી વધુ પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। પીઠ કે પેઢામાં થતો અસહ્ય દુખાવો પથરીનું લક્ષણ છે। આ સિવાય ઉપકા ઉલટી થવા કે પેશાબમાં લોહી આવવું પણ લક્ષણ છે। પેશાબમાં બળતરા કે પછી વારંવાર પેશાબ થવો કે પછી પેશાબ બંધ થવો। જો કે દરેક દર્દીમાં આ બધા લક્ષણો એક સમાન નથી હોતા। શરૂઆતના તબક્કામાં સોનોગ્રાફી કરતા પથરી વિશે જાણી શકાય છે। આ સિવાય IVU એટલે કે ઇન્ટ્રાવેનસ યુરોલોજી જેવી ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા પથરી, કિડની પર તેની અસર અને કિડનીની કાર્યક્ષમતા વિશે જાણી શકાય છે। મોટાભાગના કેસીસમાં જો પથરી નાની સાઇઝની હોય તો ડોક્ટર્સ પણ પેશાબ વાટે તે નીકળી જાય તે જ વિકલ્પ પસંદ કરે છે। જોઈએ પથરી માટે આધુનિક ટ્રીટમેન્ટ। રેટ્રોગ્રેડ ઇન્ટ્રારીનલ સર્જરી, લિથોટ્રિપ્સી, યુરેટરોસ્કોપી, પરક્યુટેનિયસ નેફ્રોલિથોટોમી, લેપ્રોસ્કોપી। હવે વાત કરીએ પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિને થતી બીમારીની તો અખરોટ આકારની કે સોપારી જેટલા કદની પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ માત્ર પુરુષોના શરીરમાં હોય છે। સામાન્ય રીતે 50 વર્ષ પછી પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિના કદમાં વધારો થાય છે। આ બીમારીના લક્ષણો પર નજર કરીએ તો સામાન્ય રીતે 60 વર્ષના પુરુષોમાં 50% થી વધુ અને 70 થી 80 વર્ષના પુરુષોમાં 70% આ બીમારી જોવા મળે છે। પેશાબની તકલીફ એ મુખ્ય લક્ષણ છે। વારંવાર પેશાબ થવાની તકલીફ સામાન્ય લક્ષણ છે। આ સિવાય પેશાબમાં ઇન્ફેક્શન થવું કે પછી પ્રોસ્ટેટને કારણે કિડની પર સોજો કે કિડની ફેલ થવી। આ પ્રકારની તકલીફોમાં નારાયણા હોસ્પિટલમાં નિષ્ણાત ડોક્ટર્સ અને આધુનિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા ઉપાય કરવામાં આવે છે। નારાયણા હોસ્પિટલનું સેન્ટર ઓફ યુરોલોજી સર્જિકલ સુપર સ્પેશિયાલિટી છે, જે પુરુષોમાં જનનતંત્ર અને યુરિનરી તંત્ર સંબંધિત તથા સ્ત્રીઓમાં યુરિનરી સંબંધિત સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ પૂરી પાડે છે। નારાયણા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલની સુવિધાઓ પર નજર કરીએ। એન્ડો યુરોલોજી, કિડનીની પથરીની એન્ડોસ્કોપી, યુરેટેરોસ્કોપી, પ્રોસ્ટેટની એન્ડોસ્કોપી સારવાર, યુરિનરી બ્લેડર કેન્સરમાં એન્ડોસ્કોપી
આમ જાણીતી નારાયણા મલ્ટી સ્પેશિયાલિટી હોસ્પિટલના નિષ્ણાત ડોક્ટર્સ તરફથી કરાતી આધુનિક ટ્રીટમેન્ટ દ્વારા કિડની અને પ્રોસ્ટેટને સંબંધિત તમામ પ્રકારની બીમારીઓથી જલ્દીમાં જલ્દી રાહત આપવામાં આવે છે. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. ભાગદોડ ભરી જિંદગી છે અને કિડનીને લગતા રોગ થતા જ આપણે ચિંતામાં મુકાઈ જઈએ છીએ, પણ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે સંદેશ ન્યૂઝ આપના માટે લઈને આવ્યું છે સ્ટે હેલ્ધી સ્ટે ફિટ. અને તે અંતર્ગત જ આપણી સાથે જોડાયા છે ડॉक्टर संजीव मेहरोत्रा के जो एक सीनियर असिस्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट है. संजीव जी, आपका स्वागत है. संजीव जी, सबसे पहले आपको पूछना चाहेंगे कि जिस प्रकार से एक कॉमन प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलता है कि यूरिन में ब्लड आता है, क्यों ये ब्लड आता है और अगर ब्लड आता है उसके सिम्टम्स क्या है और उसका इलाज क्या है? देखिए, यूरिन में ब्लड अगर आता है तो इसको सीरियसली लेना चाहिए. ये एक साधारण बात नहीं है. कारण कई सारे हो सकते हैं. सबसे कॉमन कारण खून, पेशाब में खून आने का है, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन है, या हम लोग गुजरात में रह रहे हैं जहाँ पे स्टोन डिजीज बहुत ज़्यादा है, स्टोन की वजह से यूरिन में ब्लड आ सकता है, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट के ट्यूमर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लड आ सकता है. तो अगर किसी भी आदमी या किसी भी को अपने यूरिन में ब्लड दिखाई देता है तो उसको सीरियसली लें, अपने डॉक्टर की तुरंत सलाह लें और उचित इन्वेस्टिगेशन कराएं. उसको ऐसे ही इग्नोर नहीं करना चाहिए. जी संजीव जी, हम चर्चा कर रहे हैं, बातें कर ले, लेकिन साथ में दर्शक मित्र कुछ हमारे साथ जुड़े हैं, उनके साथ भी बातें करेंगे. एक दर्शक मित्र जुड़ चुके हैं. ओंकार गिरी जी, आपनो प्रश्न जणावशो. મારા બે કિડનીમાં પથરી છે અને એ પથરી ભૂકો થઈ જાય છે ને અવારનવાર 12 વર્ષ થાય છે. ओके, ये बहुत से लोगों में देखने को मिलता है कि पथरी एक बार हुई उसके बाद दोबारा पथरी बन सकती है. इसके लिए आपको अपना डिटेल इवैल्यूएशन कराना चाहिए, जिसमें हम लोग ब्लड में और यूरिन में कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये ब्लड भी टेस्ट करते हैं. 24 आवर यूरिन में कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, ये इसके अलावा पैराथायरॉइड ग्लैंड की टेस्टिंग होनी चाहिए. इसमें अगर कोई चीज अबनॉर्मल मिलती है जिसकी वजह से पथरी आपको बार बार बन रही है तो उस कारण को निकाल कर उसका इलाज करके आपके पथरी बार बार बनने को रोका जा सकता है. जी संजीव जी, जहां पर हम स्टोन की बात कर रहे हैं तो आपसे पूछना चाहूंगा कि स्टोन जो है वैसे तो सर्जरी से निकल जाता है, वेदर इट्स अ फैको और सर्जिकल, लेकिन कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि आयुर्वेदिक तरीके से भी इसे निकाला जाता है, कुछ काढ़ा दिया जाता है या ऐसा कुछ, ये कितना मुनासिब होगा? नहीं, देखिए, स्टोन ये एक बहुत बड़ा मिथ है. लोग सोचते हैं कि आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक या कुछ एलोपैथिक दवाइयों से स्टोन निकल सकता है. स्टोन जो निकलता है यूरिनरी ट्रैक्ट में वो अपने साइज की वजह से निकलता है. कोई भी स्टोन, सारे स्टोन किडनी में ही बनते हैं, उसके बाद किडनी से यूरेटर में, यूरेटर से ब्लैडर में आते हैं. जो स्टोन जिसका साइज 5 मिलीमीटर या उससे छोटा है, 95% से ज्यादा चांस है कि वो अपने आप निकल जाएगा. अभी ये जो हो रहा है ये स्टोन के साइज की वजह से हो रहा है, ना कि दवाइयों की वजह से. आपको कुछ लोग मिलेंगे जो बोलेंगे, लाके आपको दिखाएंगे वो स्टोन हो सकता है 8 मिलीमीटर का हो, 10 मिलीमीटर का स्टोन हो, कि मेरे को इतना बड़ा स्टोन पास हो गया. तो हर एक की बॉडी अलग अलग है, हर एक की फ्लेक्सिबिलिटी अलग अलग है. किसी का यूरेटर ज्यादा फ्लेक्सिबल है तो ज्यादा बड़ा स्टोन पास हो सकता है. बट 5 मिलीमीटर से ज्यादा जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है अपने आप स्टोन निकलने के चांसेस कम होते जाते हैं. बिल्कुल, एक दर्शक मित्र जोड़ाया है. जयाबेन, आपनो प्रश्न जणावशो. जी जयाबेन, आपनो प्रश्न जणावशो. મને બંને કિડનીમાં પથરી છે. પહેલા 10 વર્ષ પહેલા ઓપરેશન કરાયું હતું. હેલો, जी जी जણાવો. डॉक्टर साहब आपने સાંભળી રહ્યા છે. બંને કિડનીમાં પથરી છે. જમણી કિડનીમાં 22 mm ની ને ડાબી કિડનીમાં 17 mm ની પથરી છે. તો जी क्या कहेंगे संजीव? आपको पहले भी पथरी हो चुकी है और अब दोनों किडनी में पथरी है, तो मेरे हिसाब से तो आपका ब्लड में कैल्शियम, फास्फोरस, यूरिक एसिड, सीरम क्रिएटिनिन और आईवीपी एक्सरे पहले होना चाहिए. इसको देख करके ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी पथरी का कैसे इलाज किया जा सकता है. बिल्कुल, किडनी की जब बात की जा रही है, पथरी होती है, उसके अलावा अभी गर्मी भी चल रही है तो काफी यूरिनल प्रॉब्लम्स भी होते हैं. गर्मियों में संजीव जी कैसे कैसे प्रॉब्लम होते हैं और कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? नहीं, गर्मियों में एक बहुत बड़ी चीज जो यहाँ पे देखने को मिलती है वो कि लोगों को सीवियर पेन होगा, स्पेशली राइट साइड या लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी के. सडनली बैठे बैठे बहुत तेज पेन होने लगता है. ये बेसिकली इस वजह से है कि क्रिस्टल यूरिया होता है, यूरिन में सॉल्ट के क्रिस्टल्स बनते हैं. ये क्रिस्टल पास होते टाइम सीवियर पेन कर सकते हैं
और इसको प्रिवेंट करने का सबसे सिंपल तरीका है कि हम अपना वाटर इनटेक एडिक्वेट रखें। अगर आप धूप में ज़्यादा बाहर ट्रैवल करते हैं, आपका काम ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा हीट को एक्सपोज्ड है, तो आपका वाटर इनटेक जरूरी है। बहुत से टाइम पे लोग वाटर इनटेक को निगलेक्ट करते हैं, इस वजह से क्रिस्टल यूरिया के इंसिडेंस ज़्यादा होते हैं और लोगों को पेन ज़्यादा होता है। બિલકુલ, એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે। વર્ષાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? વર્ષાબેન, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો? हेलो જી વર્ષાબેન। हाँ વર્ષાબેન, આપને એક વિનંતી છે કે પ્લીઝ ટીવીનો અવાજ બંધ કરી દેશો અને ત્યારબાદ આપનો પ્રશ્ન પૂછશો, પ્લીઝ। હું 52 વર્ષની એક લેડી છું જી। અને મારી 2 કિડનીમાંથી એક કિડની નાની છે તો नहीं, ये काफी लोगों में देखने को मिलता है। किडनी छोटी होने का कारण कई दफे किडनी जन्म से छोटी हो सकती है। कुछ उसके अलावा कंडीशंस होते हैं कि जैसे रीनल आर्टरी स्टेनोसिस हुआ, उसकी वजह से किडनी छोटी हो सकती है, या किसी किसी को रिफ्लक्स है, बहुत लंबे समय तक रहता है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से स्कारिंग होकर के किडनी छोटी हो सकती है। अगर आप में और कोई तकलीफ नहीं है, मतलब आपको बार बार बुखार नहीं आता है, आपको यूरिन में बार बार इन्फेक्शन नहीं होता है, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं है, तो शायद ये किडनी शुरू से ही छोटी हो सकती है। लेकिन इसका इवैल्यूएशन करके हम इसका एग्जैक्ट कारण पता कर सकते हैं कि आपकी किडनी छोटी क्यों है। एक दूसरा, कोई जरूरी नहीं है कि अगर किडनी छोटी है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत होती है। बहुत से टाइम पे किडनी अगर कंजेनिटली छोटी है और पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है तो उसको जस्ट फॉलोअप में रखते हैं, कुछ किसी भी तरह की कोई सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर किसी बीमारी की वजह से, जैसे मैंने कहा कि रिफ्लक्स की वजह से अगर किडनी में फंक्शन एडिक्वेट नहीं है तो उसके लिए कुछ करने की जरूरत पड़ सकती है। બિલકુલ, એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે આપણી સાથે। વડોદરાથી જયેશભાઈ જોડાયા છે। જયેશભાઈ, પ્રશ્ન જણાવશો? હમણાં 20 દિવસ પહેલા યુરોલોજીસ્ટ ડોક્ટરને બતાવેલું છે જી। તો જે મારી પ્રોટેસ્ટની જે વેટ છે એમાં મારું 50 વર્ષની ઉંમરે 10 ગ્રામનું હોવું જોઈએ, એમને એવું કહ્યું છે તો 20 ગ્રામ વજન છે, તો એના માટે કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરી કે ભવિષ્યમાં એ વધી નહીં જાય, એનો પ્રોબ્લેમ થાય પ્રોટેસ્ટમાં? देखिए, प्रोस्टेट हर मेल को होती है, जन्म से होती है, उम्र के साथ बढ़ती है, और इसके बढ़ने को ये एक नेचुरल प्रोसेस है जिसकी वजह से प्रोस्टेट साइज में बढ़ती है। अभी प्रोस्टेट का साइज क्या है इससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकलता है। हमको पेशेंट्स रोज ऐसे देखने को मिलते हैं जिनकी प्रोस्टेट साइज में बहुत छोटी होती है लेकिन सिम्टम बहुत ज्यादा है। ऐसे भी पेशेंट देखने को मिलते हैं जिनकी प्रोस्टेट बहुत बड़ी है लेकिन सिम्टम कुछ भी नहीं है। तो अकेले प्रोस्टेट का साइज सिर्फ इलाज करने के लिए जरूरी है ऐसा नहीं है। पेशेंट को सिम्टम क्या है, अगर आपको पेशाब करने में तकलीफ हो रही है, मतलब आपके पेशाब का फ्लो नहीं आता है, आपको बहुत टाइम लगता है, आपको बार बार पेशाब करने जाना पड़ता है, आपको पेशाब पास करने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, सोनोग्राफी करके हम देख सकते हैं कि आपका यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह खाली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका फ्लो कैसा है, इन चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको इलाज की जरूरत है कि नहीं है। अगर आपका फ्लो एडिक्वेट है, अगर आपका ब्लैडर एडिक्वेटली खाली हो रहा है और आपको कोई सिम्टम नहीं है तो साइज का उतना ज्यादा असर नहीं होता है। जी संजीव जी, जिस तरह से किडनी की बात कर रहे थे, हम पूछने का मन ये कर रहा है कि कैंसर के बारे में, ज्यादातर कैंसर आजकल लोग काफी अवेयर हो चुके हैं उसके बारे में, लेकिन किडनी कैंसर के लिए लोग इतने अवेयर नहीं हैं। तो हम चाहते हैं कि किडनी कैंसर के बारे में आप समझाएं, उसको कैसे पहचाना जाए और कैसे उसको ट्रीट किया जाए। देखिए, जैसे शरीर के अन्य अंगों में कैंसर हो सकता है वैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में भी कैंसर हो सकता है। ये कैंसर किडनी में हो सकता है, यूरेटर में हो सकता है, ब्लैडर में हो सकता है, प्रोस्टेट में हो सकता है, यूरिन पैसेज में हो सकता है, टेस्टिस में हो सकता है, कहीं भी यूरिनरी ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है। आपने किडनी कैंसर की बात करी। किडनी कैंसर में अब आज की तारीख में जो हम लोग देखते हैं, कई दफे छोटे ट्यूमर्स पकड़ में आने शुरू हो गए। वो इस वजह से कि अब हेल्थ चेकअप और कॉमन होता जा रहा है, लोग वॉलंटली जा करके अपना सोनोग्राफी कराते हैं और उसमें अगर कुछ दिखता है कि ये है तो यूरोलॉजिस्ट के पास सलाह के लिए जाते हैं। नॉर्मली जो पेशेंट्स अपना हेल्थ चेकअप नहीं कराते हैं उसमें ये काफी बड़े ट्यूमर्स प्रेजेंट करते हैं क्योंकि इसमें सिम्टम नहीं होता है। सिम्टम जब आएगा, मरीज को पेन होना शुरू हुआ, हैवीनेस मालूम पड़ने लगी, एब्डोमेन में लंप फील होने लग गया, या ब्लड यूरिन में आया, उस समय तक कैंसर काफी आगे बढ़ चुका होता है। तो इसलिए मेरी सलाह ये है कि अगर आपकी उम्र 50 साल या उससे ऊपर हो रही है
तो एटलीस्ट अपने को एक गिफ्ट अपनी बर्थडे पे जरूर दीजिए, अपना हेल्थ चेकअप करा के। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको इजीली बहुत सिंपल इन्वेस्टिगेशन अल्ट्रासाउंड जो बहुत फ्रीली अवेलेबल है, एक्सपेंसिव भी नहीं है, उससे पिकअप किया जा सकता है। पिकअप रेट इज वेरी हाई। यूजुअली अल्ट्रासाउंड डजंट मिस दीज कैंसर्स। अगर उसमें दिखता है कि कुछ उसमें किडनी में कुछ ट्यूमर की तरह का दिख रहा है तो हम आगे सीटी स्कैन करके उसको कंफर्म करते हैं। और आज जिस तरह की टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है, स्पेशली सर्जिकल टेक्निक्स में रिवोल्यूशन हो चुका है, और उससे किडनी पूरे निकाले जाने की जरूरत नहीं है। ये ट्यूमर के साइज पे डिपेंड करता है। अगर ट्यूमर का साइज 7 सेंटीमीटर या उससे छोटा है और उसकी लोकेशन किडनी में इतनी क्रिटिकल जगह पे नहीं है तो हम बाकी किडनी को भी बचा सकते हैं, सिर्फ ट्यूमर निकाल सकते हैं। જી સંજીવજી, આપની સાથે આ ચર્ચાને આગળ પણ ચલાવીશું અને દર્શક મિત્રો આપના પણ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું, પણ તે પહેલા સમય છે બ્રેકનો। વેલકમ બેક। ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ સિનિયર કન્સલ્ટન્ટ ન્યુરોલોજીસ્ટ સંજીવ મલ્હોત્રા સાથે અને દર્શક મિત્રોના પ્રશ્નોની ચર્ચાને આગળ વધારીએ। એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે। જી, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો। હેલો જી હેલો, અમારે એક દાદા છે, જી એમને યુરિનમાં છે ને એટલે તકલીફ છે, યુરિન વારંવાર કરવો પડે છે, એટલે દર અઠવાડિયે એમને ડોક્ટરે છે ને કેથેટર નળી આવે છે ને એ નાખવાનું કીધું છે। ओके, क्या कहेंगे सर इसके बारे में? हाँ, उनकी एज क्या है इस पे डिपेंड करता है कि उनकी एज क्या है। उनका एग्जामिनेशन करने के बाद में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली हो रहा है कि नहीं खाली हो रहा है, इन चीजों के ऊपर उनका इलाज डिपेंड करेगा। कई दफे ये हो सकता है कि पेशाब की थैली पूरी तरह से खाली नहीं हो रही है, या अगर पेशाब बहुत ज्यादा अंदर रुका हुआ है, जैसे किसी को अगर आप अल्ट्रासोनोग्राफी पे पेशाब करने के बाद देखें कि कितना यूरिन पीछे बचा हुआ है, अगर 400 ml, 300 ml, 350 ml इस तरह का पेशाब अंदर रुका हुआ है तो फिर कैथेटर डालने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन हाँ, कैथेटर एक टेम्परेरी इलाज है किसी का ब्लैडर ड्रेन करने के लिए, क्योंकि यूरिन शरीर पे अंदर रुकने के लिए नहीं बना है, इसको बाहर निकलना चाहिए। अगर ये अंदर रुकता है तो और दूसरी प्रॉब्लम्स कर सकता है। तो ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है कि आप यूरिन को खाली कर दीजिए, बट यूरिन अंदर रुक क्यों रहा है इसका कारण पता लगाने की जरूरत है। इसको इवेल्युएशन के बाद ही हम बता सकते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। જી, અને એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે। આપનો પ્રશ્ન જણાવશો। હા જી સર, મારા બા છે, એમની ઉંમર 65 વર્ષ છે, એમને લગભગ 1 થી 2 વખત છે ને પેશાબમાં બળતરા અને ઇન્ફેક્શનનો પ્રોબ્લેમ થયો હતો। જી તો આ સેકન્ડ ટાઈમ થયો એટલે એમને અહીંયા અમે એક સર્જનને બતાવ્યું, એમને યુટીઆઈ પેક પીએસી દવા લખી આપી હતી, એમનાથી લગભગ એમને 1 મહિનો લીધી અને એના પછી હમણાં 10-15 દિવસ પહેલા યુટીઆઈ બીડ નામની દવા લખી આપી। હવે એમને શું થાય છે પ્રોબ્લેમ કે હજુ બી પેશાબમાં કોઈક દિવસ છે ને બળતરા થાય છે। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली लेडीज में, उन लेडीज में जिनको मेनोपॉज हो चुका है। दैट मीन्स कि 45 साल के ऊपर जब पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं तो फीमेल्स के शरीर में कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट में भी चेंजेस आते हैं। और ये अकेले इन्फेक्शन नहीं है, ये बहुत कॉमन चीज है। और कई दफे यही देखने में मिलता है कि इन पेशेंट्स में अगर आप यूरिन टेस्ट कराएं, यूरिन में पसल दिखाई देंगे, कल्चर कराएं, कल्चर पॉजिटिव आएगा, आप एंटीबायोटिक दीजिए, पेशेंट को थोड़े समय के लिए रिलीफ हो जाता है, फिर उसके बाद एंटीबायोटिक जैसे ही बंद करी थोड़े समय बाद सिम्टम फिर आने लगते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ एक यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, इसके साथ में एसोसिएटेड चीजें हैं जो कि शरीर में ईस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने के कारण बनते हैं, जिससे ये चीजें बार बार होती है। अगर इनका प्रॉपर इवेल्युएशन करके दोनों ही चीजें ट्रीट की जाए, इन्फेक्शन और जो ईस्ट्रोजन की कमी हुई है उसका दोनों इफेक्ट साथ साथ अगर ट्रीट किए जाए तो ये लॉन्ग टर्म पे इनका इलाज हो सकता है। જી, એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે। દર્શનાબેન, પ્રશ્ન જણાવશો। हेलो, मारे राइट किडनी में सिस्ट है। જી हेलो જી જી જણાવો। नहीं, किडनी में राइट किडनी में सिस्ट है। हाँ, अगर आपकी किडनी में आपको पता लगा कि सिस्ट है तो जो मैं ये प्रिज्यूम करता हूं कि आपने सोनोग्राफी कराई होगी, तो उसमें सोनोग्राफी में आगे एक शब्द शायद और लिखा होगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है या सिंपल सिस्ट है। किडनी में सिस्ट होना बहुत कॉमन बात है। अगर
हम सड़क पे चलते हुए 100 लोगों की अल्ट्रासोनोग्राफी लेके करें तो कम से कम 10 से 12 या 15 लोगों की किडनी में हमको सिस्ट मिलेगी जिनको किडनी की कोई भी बीमारी नहीं है उसमें। तो किडनी में सिस्ट होना कोई ऐसी एबनॉर्मल चीज नहीं है। हाँ, जो देखने की चीज है कि ये सिंपल सिस्ट है कि कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है। अगर सिंपल सिस्ट है, सिस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफी के हिसाब से और सीटी के हिसाब से कई तरह का ग्रेडेशन है, ये 5 ग्रेड की हो सकती है। तो अगर ये अप टू 3rd ग्रेड की सिस्ट है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती है। बहुत से लोगों में शायद ये साइज में भी ना बढ़े और लाइफ लॉन्ग कुछ भी नहीं करना पड़े। कुछ लोगों में ये साइज में बढ़ सकती है, लेकिन अगर ये ग्रेड 4 ग्रेड 5 की सिस्ट है तो सीटी स्कैन करके इवैल्यूएशन फर्दर करने की जरूरत पड़ती है। अगर उसमें कुछ एविडेंस मिलती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड सिस्ट है तो उसका जो इलाज है वो इलाज करना चाहिए। જી ડોક્ટર સંજીવ મલ્હોત્રા સાથે આ ચર્ચાને આગળ પણ ચાલુ રાખીશું અને દર્શક મિત્રો આપના પણ પ્રશ્નોની ચર્ચા કરીશું, પણ તે પહેલા એક નાનકડો બ્રેક। વેલકમ બેક। ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ ડોક્ટર સંજીવ મલ્હોત્રા સાથે અને એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે। આપનો પ્રશ્ન જણાવશો। સર, તમે જે અત્યારે બતાવો છો સેમ મને પણ એવો પ્રોબ્લેમ છે। મારે છે યુરિનમાં મને બ્લડ નીકળે છે અને યુરિનમાં મને બ્લડ જાય છે, સોજા ઉતરતા નથી અને વારે ઘડીએ મને બાથરૂમ જવું પડે છે। ઓકે, हाँ, तो मैंने शुरू में भी ये कहा था कि किसी के यूरिन में अगर ब्लड जाता है तो उसको सीरियसली लेना चाहिए। अगर आपके शरीर में सूजन हो रही है, ब्लड जा रहा है और तो आपका यूरिन का टेस्ट, आपका ब्लड का सीरम क्रिएटिनिन टेस्ट और आपके एक अल्ट्रासोनोग्राफी होना चाहिए। इन रिपोर्ट्स के साथ में आप अपने कंसल्टेंट को, आपके जो भी फिजिशियन है उनको मिलिए। ये देख करके वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे कि किसको दिखाने की जरूरत है और उसके हिसाब से आपका इलाज होगा। जी संजीव जी, यूरिनरी ब्लैडर जो कैंसर होता है उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे इससे ट्रीट किया जाता है। देखिए, जैसे अब शरीर के बाकी भागों में कैंसर होता है वैसे यूरिनरी ब्लैडर में भी कैंसर हो सकता है। ये मेल फीमेल दोनों में हो सकता है, बट मेल्स में चांसेस यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के इंसिडेंस ज्यादा है। कुछ ऑक्यूपेशन है जैसे कि कुछ लोग जो पेंट फैक्ट्री में काम करते हैं या हेयर ड्रेसर्स है या ड्रिल प्रेस ऑपरेटर्स है या स्मोकर्स है, इसमें ये कैंसर होने का चांस ज्यादा है। अभी अगर आपने बात करी कि कितने तरीके का हो सकता है, तो यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर अगर हिस्टोलॉजिकल टाइप मतलब बायोप्सी में कितनी तरह का कैंसर दिखता है उसकी बात करें तो ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, एडेनोकार्सिनोमा, ये 3 तरह की मैलिग्नेंसीज मिल सकती हैं, जिसमें सबसे कॉमन है ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा। किस तरह से प्रेजेंट करता है, सबसे कॉमन प्रेजेंटेशन जैसा शुरू में भी बताया कि यूरिन में ब्लड आना हो सकता है। उसके अलावा पेशाब बार बार ज्यादा, अर्जेंटली भागना, उसके अलावा जलन होना, ये सिम्टम्स भी साथ में आ सकते हैं। सिंपल इन्वेस्टिगेशन फिर उसमें आता है कि एक अल्ट्रासाउंड किया जाए। अगर ब्लैडर में ट्यूमर है तो यूजुअली अल्ट्रासाउंड में पिकअप हो जाता है। उसके अलावा यूरिन का टेस्ट जिसमें हम लोग यूरिन साइटोलॉजी करते हैं, और अगर कुछ सस्पिशियस इस तरह का दिखता है अल्ट्रासाउंड या यूरिन साइटोलॉजी पे तो फिर सीटी स्कैन करके देखे जाने की जरूरत है कि ये सिर्फ यूरिनरी ब्लैडर में है कि ऊपर किडनी और उसके यूरेटर में भी है। जी, एक दर्शक मित्र जोड़ाया છે અમદાવાદથી, આપનો પ્રશ્ન જણાવશો। આપને વિનંતી છે કે પ્લીઝ પહેલા ટીવીનો અવાજ બંધ કરશો અને ફક્ત આપણે ફોન ઉપર વાત કરીએ। પ્લીઝ પ્રશ્ન જણાવશો। જી ડોક્ટર સાહેબ આપને સાંભળી રહ્યા છે, પ્લીઝ પ્રશ્ન જણાવશો। વેલ, થેન્ક યુ સો મચ। આપનો કોલ ડિસ્કનેક્ટ કરવો પડે છે એઝ ધે સે ટાઈમ ઇઝ મની। તો આપણે આગળ ચર્ચામાં વધીએ। નિયો બ્લેડર વિશે જાણવા માંગીશું સંજીવજી આપની પાસેથી। जो ब्लैडर का कैंसर है, जो सबसे कॉमन कैंसर है, जैसे मैंने बताया कि ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा है, जिसके सबसे ज्यादा पेशेंट देखने के लिए मिलते हैं ब्लैडर कैंसर के केसेस में। अभी ये ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा 2 तरह का हो सकता है, सुपरफिशियल जो कि ब्लैडर की लाइनिंग का कैंसर है, या मसल इन्वेजिव जो ब्लैडर की लाइनिंग से निकल के डीप मसल में चला गया है। तो ये 2 तरह के हो सकते हैं। जो सुपरफिशियल कैंसर है उसमें तो हम सिर्फ कैंसर को एंडोस्कोपी टेक्निक से सिर्फ काट करके निकाल देते हैं, उससे ज्यादा आगे कुछ करने की, सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हिस्टोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको इंट्रावेसाइकल इम्यूनोथेरेपी या इंट्रावेसाइकल कीमोथेरेपी देने की जरूरत है या नहीं।
लेकिन जो कैंसर लाइनिंग से निकल के मसल में चले गए, यानी हिस्टोलॉजी में अगर हमको दिखता है कि मसल इन्वेजिव कैंसर है, ये वो कैंडिडेट हैं जिसमें यूरिनरी ब्लैडर निकालने की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ एंडोस्कोपिक ट्यूमर रिमूवल पूरा ट्रीटमेंट इसमें नहीं है। तो एक बार हिस्टोलॉजिकल प्रूफ आ गया, उसके बाद हम सीटी स्कैन करके देखते हैं कि कैंसर कहां तक है। अगर रिसेक्टेबल ट्यूमर है तो फिर ब्लैडर निकाल दिया जाता है। एक बार ब्लैडर निकाल दिया गया, अब यूरिन को शरीर से बाहर आने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो जो कॉमनेस्ट डाइवर्जेंस रहते हैं उसमें ये कि एक आइलियल कॉन्डुइट बना देते हैं, मतलब इंटेस्टाइन का एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं जिसमें एक एंड पे दोनों यूरेटर लगा दिए जाते हैं, दूसरा एंड शरीर के बाहर ले आया जाता है जिसपे एक बैग लगा रहता है। इस चीज को अब अवॉइड कर सकते हैं सेलेक्टेड पेशेंट्स में, स्पेशली जो यंग पेशेंट्स हैं, मेडिकली फिट है, जिसमें लिमिटेड डिजीज है, उसमें हम इंटेस्टाइन का एक नया ब्लैडर बना सकते हैं। मतलब इंटेस्टाइन का एक सेगमेंट उसकी ब्लड सप्लाई के साथ अलग करते हैं, उसको फैशन करके ब्लैडर की तरह बना करके यूरिन पैसेज से लगा सकते हैं। જી સંજીવ જી, આ સમગ્ર ચર્ચામાં આપ અમારી સાથે જોડાયા અને સંદેશ ન્યૂઝના દર્શક મિત્રોને આપે માર્ગદર્શન આપ્યું એ બદલ ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ સો મચ. દર્શક મિત્રો, કહેવાય છે કે પહેલું સુખ તે જાતે નર્યા અને સંદેશ ન્યૂઝ પણ આપની સાથે છે. સો સ્ટે ફિટ, સ્ટે હેલ્ધી. નમસ્કાર.